Now today we are going to start with chapter number 1, animals and their young ones. Okay, in this chapter we will learn about reproduction, animal that lays egg and animals that give birth to their babies. Now first is reproduction. All living things produce another of their own kind. This process is called reproduction. जो living things है वो reduce करते हैं young one of their own another kind. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? Reproduction कहते हैं. Reproduction helps in the continuity of the life on the earth. Reproduction किस में help करता है? कि life की continuity को earth पे increase करता है. Animals reproduce in two ways: by giving birth to young ones and by laying eggs from which young one hatch. ठीक है, इससे by giving birth to young one को भी birth देके या फिर egg hatch कर. A frog with her tadpole, a snake with her hatching and a lioness with her cub. ये क्या है? इनके young one है. Animals that give birth to young one. Many kinds of animals give birth to young ones which develop inside the mother body. Example: lion, cat, dog, human. The second group is formed by the animals that lay eggs, out of which baby hatches after a short time. Here the baby develop inside the egg. For example, hen snake. ठीक है, देखो ह्यूमन बींग्स होता है वो रिप्रोड्यूस करता है यंग वंस को, और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गया, वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं. और दूसरा प्रोसेस क्या है कि जो सेकंड ग्रुप क्या है, जो एग से जो एग हैच करते हैं. ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो हैच होके बाहर आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल hen हो गया, स्नेक हो गया. किसके एग्जाम्पल है आपके? एनिमल्स दैट ले एग्स. Animals that lay eggs. There are some animals that lay eggs from which the young one hatch. Let us study about a few such animals. अब कुछ animals हैं जो egg lay करते हैं. First is birds. Birds lay egg. The parent bird sits on these egg to keep the egg warm. After few days, chicks hatch from the egg. Bird क्या करते हैं? एग ले करते हैं. ठीक है, द पेरेंट बर्ड सिट ऑन दिस एग. और जो पेरेंट बर्ड होती है वो उस एग पे बैठती है उसको गर्म करने के लिए. आफ्टर अ फ्यू डेज चिक हैच एग फ्रॉम द एग. थोड़े दिन बाद चिक निकलता है फ्रॉम द एग. एन एग ऑफ अ बर्ड हैज द फॉलोइंग पार्ट्स. अब हम बात करेंगे जो बर्ड का एग होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज एग शेल. इट इज द हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ द एग. एग शेल क्या होता है? वो होता है हार्ड. इट इज द हार्ड आउटर कवरिंग. ये हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो क्या प्रोटेक्ट करती है? इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ द एग. एल्बुमिन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग वाइट. एग वाइट जो होता है सब एल्बुमिन कहते हैं, और वो किसमें रिच होता है? प्रोटीन रिच होता है. यॉक. इट इज येलो कलर्ड पार्ट ऑफ एन एग. द येलो यॉक कंटेन्स फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. यॉक क्या होता है? जो येलो पार्ट होता है, येलो वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं यॉक कहते हैं. इसके अंदर फैट होता है, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं. इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द ग्रोइंग चिक. द ग्रोइंग चिक इज कॉल्ड एम्ब्रियो. द चिक कम्स आउट ऑफ द एग आफ्टर 21 days ओनली इफ द एग इज केप्ट वार्म. 21 days के बाद ही वो, अगर उसे हमसे वार्म करके रखे तो ही क्या होता है? वो बाहर आता है. नाउ फ्रॉग. अ फ्रॉग एग हैचेस इनटू अ टेडपोल. इट हैज नो लेग्स एंड लुक मोर लाइक अ फिश. A frog lays egg in large cluster called swarm. ठीक है, जो frog है वो lay egg करता है किसमें? egg hatch करता है into a tadpole. वो fish की तरह होता है, उस पर कोई leg नहीं होता. ठीक है, जब वो cluster में hatch होता है समझे कहते हैं spawns कहते हैं. A tadpole hatches out of the egg which is very different from the adult frog. It undergoes several changes before it becomes an adult. This process is called metamorphosis. जब तक frog adult बनता है उस process को हम क्या कहते हैं? Metamorphosis. Now insects such as butterfly also lay eggs. The young ones are not like that, right? They appear very different. They are known as larvae. The larva of butterfly is also called caterpillar. जो larva होता है butterfly का उसे हम क्या कहते हैं? Caterpillar. The caterpillar eat leaves. It grows bigger and becomes inactive and forms a covering around itself. This is known as pupa. ठीक है, तो कैटरपिलर होता है वो लीव ईट करता है और वो फिर बिगर होता है, फिर वो इनएक्टिव हो जाता है. उसको हम क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं. जैसे ये रहा. ठीक है, टर्न इनटू प्यूपा. द प्यूपा इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कुकून. फिर ये प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कुकून कहते हैं. द कुकून ब्रेक्स ओपन इन अ वीक एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम्स. फिर एक वीक में वो ओपन हो जाता है, फिर एडल्ट बटरफ्लाई क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है. ठीक है,
नाउ कॉकरोचेस एंड ग्रासहोपर शोज 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. इसमें आपको 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दिखाई देगी. ठीक है, यहाँ एग से में निफ पड़ेगा, फिर निफ एंड देन इनटू अडल्ट. इसमें आपको 3 स्टेजेस दिखाई देंगी. द एग हैंच इनटू अ यंग कॉकरोच कॉल्ड निफ. जो एग है वो इसमें इनटू अ न्यू यंग कॉकरोच, जिसे हम कहते हैं निफ, विच लुक सिमिलर टू द एडल्ट बट डू नॉट हैव विंग्स. ये एडल्ट की तरह लगता है लेकिन इसके विंग्स नहीं होते. The nymphs shed their skin several times and changes into adult. The process of shedding the skin in insects several times before they grow into adult is called molting. जो shedding होता है उनका skin का, उस संख्या कहते हैं, उस process को molding कहते हैं. Animals that give birth to babies. Animals such as dog, cats, elephant, and rhinoceros, they produce by giving birth to young one. The young one resembles the parents in many. ठीक है, एनिमल जैसे कि गॉड हो गया, काउ हो गया, हॉर्स हो गया, ये अपने यंग वन को कहते हैं बर्थ देते हैं. ठीक है, और ये किसकी तरह रिजेंबल करते हैं, इनके पेरेंट्स की तरह. इन द बिगनिंग द यंग वन फीड्स ऑन देयर मदर मिल्क. सच मिल्क एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स. द प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मैमल. जो प्रेजेंस ऑफ हेयर होता है उनकी बॉडी पे, वो एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, मैमल. Mammals have the very well-developed brains. Monkey, cat, dog, dolphin, lion, elephant, deer, cows, buffalo, hippopotamus, zebra, giraffe, rabbit, human beings are mammals. देखो mammals का होता है उनका वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा. फॉर एग्जाम्पल मंकी, कैट, डॉग, आपका डॉल्फिन हो गया, डियर हो गया, काउ हो गया, राइनोसोर हो गया, क्या होता है, वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है. तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं. मोस्ट एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स फाउंड इन वाटर. The aquatic mammals do not have hair. जो aquatic mammals होते हैं उनके हेयर नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल डक बिल, डॉल्फिन और व्हेल, ये वो aquatic animals है जिनके हेयर नहीं होते. Just as our parents look after us, all other mammals look after their babies. Most of them build house to protect their babies from enemies and also hunt for food. The mother feeds her babies with her own milk, cleans them and keep them warm. The mother है अपने बेबी को फीड करते हैं, उनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उनको क्लीन करते हैं. Kangaroos have a pouch on their body to carry the young one. Animals that carry their body in their pouch are called marsupials. क्या कंगारू होते हैं, उनके बॉडी में पाउच होता है, अपने उसमें यंग वन को वो कैरी करते हैं. ठीक है, अ मदर एंड अ चाइल्ड, अ काउ एंड अ कफ, अ डॉग एंड अ पपी, एन एलिफेंट एंड हर काउ. ये क्या है, एनिमल्स और उनके यंग वन. ठीक है, द चैंपियन लेज egg layer is a giant clam which lives on the ocean bed. It produces about 100 crore eggs at a time and does this year after year about 30 years. Can you tell how many eggs does it? ठीक है, ये 100 करोड़ eggs ले सकती है हर 30 years. ठीक है, हर 30 years में कौन आपका चैंपियन egg ले. ठीक है, that's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.